Welcome in today's session. Today we will see the remaining important points from your jurisprudence, whatever we have seen in the last three lectures regarding jurisprudence, that are a very important point. But as I think there are some point left, so those point will be discussed in this lecture. मैंने आपके लिए वो points सब कलेक्ट किए हैं बुक में से. जो पोर्शन जो है आज का वो बुक में नहीं है, आज ही मैंने पिक किया है. और वैसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो सब हो चुका है अपना, जितना भी इम्पोर्टेंट है ज्यादा इम्पोर्टेंट, अलॉन्ग विद देयर ईयर ऑफ पासिंग एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स, कि हर एक एक्ट का पासिंग ईयर कौन सा है, कब एक्ट इनेक्ट हुआ है, कब एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है, कब एक्ट पास हो चुका है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. सो डिफरेंट एक्ट्स, देयर ईयर ऑफ पासिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, so that is also important. So first one is the Pharmacy Act 1948. So Pharmacy Act was passed in the 1948 with the objective to regulate the pharmacy profession in the India. The act is enacted everywhere except Jammu and Kashmir. Okay, so Pharmacy Act was passed in 1948. It was passed with the objective to regulate the pharmacy profession in India. जो भी फार्मेसी प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी एक्ट बनाया है 1948. ये एक्ट सभी स्टेट में लागू होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. सो इन द फार्मेसी एक्ट there are different chapters. There are few chapters under the Pharmacy Act. Chapter 1, which consists of an introductory part. Introductory part is in the chapter 1. Chapter 2, Pharmacy Council of India, its constitution of Pharmacy Council of India, its functions, and all that. So bodies regarding the Pharmacy Council of India. So that is given under chapter 2. So we have already seen the constitution of your Pharmacy Council of India. 6 elected member, 6 nominated member, ex officio member, like that. Then chapter 3 consists of a state pharmacy council and its constitution along with your joint state pharmacy council. जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रोल क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके कितने मेंबर्स होते हैं, वो सब चैप्टर 3 में है. फार्मेसी काउंसिल का जो है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मेंबर्स, वो सब चैप्टर 2 में है. उसके बाद चैप्टर 3 में क्या है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, उसका पूरा मेंबर्स कितना होता है और उसका फंक्शन क्या है. नाउ चैप्टर 4 में क्या है, registration of pharmacist, how a pharmacist can enter his name in the state pharmacy register. So that is given in the chapter 4. Now chapter 5 consists of miscellaneous information. So just remember, the Pharmacy Act was passed in 1948, and the objective of that act is nothing but to regulate the pharmacy profession in India. This act is enacted everywhere except Jammu and Kashmir, because at that time Jammu Kashmir was a disputed area. Now Drug and Magic Remedies Act. Second one is Drug and Magic Remedies Act. Now this act is also known as Objectionable Advertisement Act. Drug and Magic Remedies Act 1945 and rules there under 1955. मतलब यहाँ पे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है उसको ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट भी बोलते हैं. ये पास हुआ था 1954 में. ईयर एंड एक्ट एंड ईयर ऑफ पासिंग. Then this act was passed in 30th of April 1954 and was passed with the objective to control, prohibit the advertisement of magic remedies which illegally possesses the magic qualities or magic properties. Magic Remedies, Drug and Magic Remedies Act 1954 ये पास हुआ था 30 अप्रैल 1954 में. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंट्रोल, टू प्रोहिबिट सर्टन kind of advertisement related to magic remedies which illegally taught to possess a miraculous power to diagnose, to cure, to treat the diseases. मीन्स इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते. मतलब आपने अगर किसी को बोलना है कि नहीं मेरे पास एक जड़ी बूटी है, ये आपके कैंसर को ठीक कर देगा, तो आपको अंडर दिस एक्ट यू आर कन्विक्टेड to prevent and to prohibit, to control certain kind of advertisement related to magic remedies. Now in that magic remedies we have definitions, we have already seen this definition, but still I will repeat. So what do you mean by magic remedies? So magic remedies, these are the kind of remedies, these are the kind of remedies like talisman, mantra, then ताइद जो बोलते हैं अपन, कोई बाबा आपको ताइद देगा पहने, सो तलिस्मान, मंत्रा, ताइद, sacred threads, kavcha, or any other charm which possess miraculous power to cure the disease as per their view. उनके व्यू पॉइंट में क्या है कि हमारे पास जो तलिस्मा है, मंत्र है, या फिर ताइद जो दे रहे हैं, या कोई सैक्रेड थ्रेड मतलब कोई धागा बांध रहे हैं आपको,
या फिर कोई कवच दे रहे हैं, लक्ष्मी कवच वगैरह कुछ। सो अगर ये कवच उनके हिसाब से उनको उसमें पावर है, लेकिन ये नहीं होता है। Then advertisement. What do you mean by advertisement? So the definition of advertisement is given under the Drug and Magic Remedies Act 1954, which includes any notice, circular, label, wrapper, or other document, and any announcement made orally or by means of producing और ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड और स्मोक। मतलब कि एडवर्टाइजमेंट किसको बोलेंगे? कुछ सर्कुलर आपने दे रहे हो, वो सर्कुलर हो, कुछ लेबल लगा के आपने, तो वो लेबल, कुछ रैपर में कुछ लिख के दिया है वो, तो वो रैपर बोलेंगे। डॉक्यूमेंट है आपके पास एडवर्टाइज के लिए, वो डॉक्यूमेंट। या फिर आप अनाउंसमेंट कर रहे हो ओरली, या फिर बाय मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट, साउंड और स्मोक, तो उसको बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट। समटाइम दे यूज टू आस्क द definitions also. Now next point, Drug and Cosmetic Act 1940 and rules under 1945. Drug and Cosmetic Act was passed in 1940, remember, with the objective to control import, manufacturing, sale, distribution of drug and cosmetic. जो drug and cosmetic है उसका import में control करने के लिए, manufacturing, sale करने के लिए सब। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन 1940. द रूल्स आर पास्ड अंडर 1945. रूल्स के बारे में इतना नहीं ध्यान में रखा तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट जो एक्ट है, एक्ट कब पास होता ये याद रखो। वी हैव सीन ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द पेनल्टीज, तो वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो पहले ले लिए। नाउ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985. दिस इज वेरी पावरफुल एक्ट। अभी जो रिसेंटली आपका शाहरुख खान का जो बच्चा है, वो भी इस केस के अंदर ही इसके पकड़ा गया है। So he is convicted under this Narcotic and Psychotropic Substances Act 1985. Okay? So this act was passed in 1985 with the objective to control the operations related to narcotic drugs and psychotropic substances. Operations related to narcotic drug and psychotropic substances. इसका मतलब क्या? ऑपरेशंस कौन से? सो ऑपरेशंस मीन्स इलीगल पोजीशन मतलब इलीगली आपके साथ ड्रग को रखना, मॉर्फिन को रखना, हीरोइन को रखना, या फिर कोडीन। हीरोइन मतलब वो पिक्चर वाला हीरोइन नहीं, ये अलग है। उसके बाद जो भी ड्रग्स है, नार्कोटिक ड्रग, उसको पजेस करना मतलब इलीगल पोजीशन, इलीगल इंपोर्ट, इलीगल कंजम्पशन, इलीगल स्टॉकिंग, एग्जीबिशन, सेल of these narcotic and psychotropic substances to control the operations related to narcotic drugs and psychotropic substances. Okay, so this narcotic drug and psychotropic substances act was passed in 1985. So this act is divided into 6 chapters and 83 sections. बाकी उसमें जो डेफिनेशन है, जैसे इलिसिट ट्रैफिक हो गया, ओपीएम पॉपी हो गया, मैन्युफैक्चर ड्रग हो गया, वो कुछ डेफिनेशन अपने कवर किए, जो रिमेनिंग है वो आज कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955. So this act is also known as Excise Duties Act. Medical and Toilet Preparation Act 1955. Okay, so this act was passed with the objective of provisions for levy and collection of excise duties on medicinal product and toilet preparation containing alcohol, opium, Indian hemp एंड अदर नार्कोटिक ड्रग। मतलब ये जो ड्रग्स होते हैं, जैसे अल्कोहल, ओपीएम और इंडियन हेम्प, या फिर इंडियन हेम्प मतलब गांजा, अल्कोहल, ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग, तो इनके ऊपर एक ड्यूटी लगती है, इनके ऊपर एक टैक्स लगता है। सो दिस मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 वाज इनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव फॉर द लेवी एंड कलेक्शन। लेवी मींस उसके ऊपर तय करना, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटीज, जो भी टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, उसके ऊपर जो मेडिसिनल प्रिपरेशन है और टॉयलेट, तो उसके रिलेटेड ये है। सो इट वाज पास्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजंस और levy and collection of excise duty on the medicinal and toilet preparation containing alcohol, opium, Indian hemp and other narcotic drugs. So it was passed in the 1st April 1947. It was passed in the 1st April 1955. So it has 11 chapters and 21 sections. Next one is Industrial Development and Regulation Act. It is not much important. If you don't remember this, it's okay. Industrial Development and Regulation Act 1952. So it was passed with the objective of monitoring, and developing the industrial activity, monitoring, building, and developing the industrial activity in the country. Next one is the Drug Price Control Order 1995. This is important. This Drug Price Control Order 1995 was passed with the objective to control the prices of drug.
prices of bulk drug, formulation, and cosmetic also. So drug price control. The drug is categorized as an essential commodity under the section 3 of Essential Commodities Act 1955. इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था. ड्रग इज कंसिडर्ड एज अ इसेंशियल कमोडिटी. कमोडिटी मतलब आपको मालूम है कमोडिटी क्या होता है. इसेंशियल कमोडिटी अंडर द सेक्शन 3 ऑफ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955. ये क्या होता है कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो होता है वो डीपीसीओ के एक्ट के रिलेशन में. इट इज रिलेटेड टू DPCO Act. Now, next one is the Prevention of Food Adulteration Act 1954. It was passed with the objective of preventing import, manufacturing, sale, distribution of adulterated, misbranded food. Prevention of food adulteration. So, Act was passed with the objective of preventing then import, then manufacturing, sale, distribution of adulterated, misbranded food, and also prevent all types of food adulteration. This was the objective of this food Prevention of Food Adulteration Act 1950. It is a Medical Termination of Pregnancy 1971. Medical Termination of Pregnancy Act 1971. This act was passed with the objective of to provide the termination of pregnancy. Provisions related to termination of pregnancy by registered medical practitioner for bona fide reason, means for valid reason. ऐसा नहीं कि कोई भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए मुंह उठा के चला आएगा डॉक्टर के पास. बोनाफाइड रीजन मतलब वैलिड रीजन होना चाहिए. क्यों आपको टर्मिनेट करना है, क्वेश्चन करेंगे ना आपको कि प्रॉब्लम क्या है. नहीं आप बोलेंगे नहीं सर हमारी शादी नहीं हुई, हमारा पहले से ही चक्कर था, तो वैसा नहीं चलेगा. यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे बोनाफाइड रीजन लगेगा. वैलिड रीजन कौन सा है, वी हैव सीन दैट इफ द मदर एज अ keeping the pregnancy will affect the mother's mental, physical health or social health, or the child to be born is having various malnutrition or malfunctioning or various mental retardation. So in that case only you can terminate the pregnancy if it is less than 12 weeks, or if it is less than 12 weeks, then if a, a physician should be in an opinion that the keeping the pregnancy will affect the health, physical and mental health of mother or the baby, the child born is with the abnormalities. Agar if pregnancy is up to 24 weeks, again it can be terminated, but at least two doctors should be in an opinion that the again same. दो डॉक्टर का पहले क्या है 12 वीक्स तक आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हो, लेकिन वहाँ आप कैसे कर सकते हो, डॉक्टर जो होता है गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक में जो जो फिजिशियन है वो ओपिनियन में होना चाहिए. उसका ओपिनियन होना चाहिए क्या कि अगर ये प्रेगनेंसी रहेगी तो उसकी मदर को प्रॉब्लम हो सकता है फिजिकल मेंटल हेल्थ, या फिर जो भी बच्चा है वो एबनॉर्मल है, उसका ग्रोथ नहीं हुआ है, वो कर सकते हैं. अगर 24 वीक्स का है तो भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे दो डॉक्टर का ओपिनियन होना चाहिए कि सेम ओपिनियन, उसको भी टर्मिनेट कर सकते हैं. Now, Medical Termination of Pregnancy Act was passed in 1971 with the objective to provide termination of pregnancy by registered medical practitioner for bona fide reason, bona fide or valid reason. Then next was the Patent Act 1970, Indian Patent Act 1970, which was coming in force in the 20 April 1972. The Indian Patent Act was passed with the objective to make India trade related intellectual property rights, to make the India trade related intellectual property rights compliant by providing the objective to make India trade related intellectual property right compliance by providing the exclusive marketing rights till the patent or product. मतलब क्या, मतलब आपने कुछ इन्वेंशन किया है, किसी ने आपका इन्वेंशन कॉपी कर लिया, आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, कुछ नहीं, ये एक्ट आने से पहले. लेकिन ये एक्ट आने के बाद क्या है कि आपके पास ऑप्शन है, आप कंप्लेंट कर सकते हो कि ये अगर आपने पेटेंट लिया है, तो अगर आपने पेटेंट लिया है, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन किया है आपकी इन्वेंशन का, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो कि ये मेरा पेटेंट है, ये इसने कॉपी किया है. उसके ऊपर फिर पेटेंट एक्ट के तहत उसका कन्विक्शन होगा, उसका फाइन लगेगा, या फिर उसको जो भी है वो जाएगा उसके अंदर कन्विक्शन, सजा वगैरह जो भी है. नेक्स्ट वन इज अ पॉइजन एक्ट 1919. पॉइजन एक्ट 19, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार कि कौन सा एक्ट कब पास हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है. पॉइजन एक्ट 1919. So it was passed with the objective to regulate the. So Poison Act 1990 was passed with the objective to regulate, control, import, possession मतलब आपके पास रखना, import, possession for the sale any specified poison.
कौन सा भी पॉइजन अगर आपने इंपोर्ट किया, आपके साथ रखा या फिर सेल करने के लिए रखा, वो नहीं चलेगा. सो दिस एक्ट वाज in 1992 regulate the import, position for sale any specified poison. Okay. Now poison क्या होते हैं? पॉइजन के कैटेगरी होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2. कैटेगरी 1 में जो है, मैंने आपको बोला था, जैसे आपका नक्सोमिका हो गया है ना, नक्सोमिका. उसके बाद में एट्रोपिन हो गया, स्कोपोलामाइन हो गया. सो ऑल दीज अल्कोलॉइड्स दे आर द थेरेपेटिक एजेंट एज वेल एज पॉइजन. ये पॉइजनिंग बोल के भी यूज हो सकता है उसका. सो कैटेगरी 1 में सब नेचुरल पॉइजन है. कैटेगरी 2 में जो भी बाकी के जो पॉइजन है, एवरी ड्रग इज अ पॉइजन इन सम एस्पेक्ट. ओके, रिमेंबर. देन एनीवन, इसके पेनल्टी अपन ने देखा नहीं था, तो इसके पेनल्टी यहाँ पे देखा है मैंने. सो एनीवन हु पोजेस पॉइजन and also sell unlawfully the poison, then import the poison without license or breaks any condition for license, it is a punishable act and it is punishable up with imprisonment of 3 months. उसको 3 महीने की जेल हो जाएगी और फाइन ऑफ 500 रुपीज और बोथ. अगर पहली बार उसने कन्विक्शन है, पहली बार उसने गलती की, तो उसका पनिशमेंट क्या है? 3 मंथ का इम्प्रिजमेंट और फाइन 500 रुपए का, या फिर दोनों. ठीक है. अगर यही बार बार कर रहा है, वो पहली बार में सुधर नहीं गया, दूसरी बार में किया, तो ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, दूसरा कन्विक्शन के बाद में क्या होगा? इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ एंड फाइन अप टू 1000 रुपीज और बोथ. दूसरी बार करेंगे तो उसका डबल पेनल्टी मिलेगा उसको. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू द एनिमल एक्ट 1960. okay, it was passed with the objective to prevent the infliction of the infliction of unnecessary pain and suffering on the animal and to prevent the cruelty to animals. होता है ना, कुछ कुछ अपने वीडियोस भी देखे होंगे, बीच में आए थे, कोई कुत्ते को ऊपर से बिल्डिंग के ऊपर से उल्टा लटका के छोड़ दे रहा है, या फिर कुत्ते के पूंछ पे पटाखा बांध रहा है. ऐसा नहीं चलेगा. सो दे विल बी कन्विक्टेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू द एनिमल एक्ट 1960. इसके अंदर उसका उसका अपन ने देखा है उसका पेनल्टीज वगैरह. नाउ नेक्स्ट वन इज AICT Act 1987, All India Council for Technical Education 1987. So it was enacted on the 15th December 1987. Now AICT is nothing but the corporate body. It will have its own stamp. It will have its own head office of head office council. Okay, so AICT head office council is in the Delhi. Okay, total number of members in the AICT, they are 51. Okay, 3 members of AICT official, they are 3 members, they are only official. 15 members are ex officio. 31 members are the nominated members and 2 members are from Parliament of India. कि जो 51 मेंबर्स होते हैं AICT के, उसमें 3 मेंबर जो होते हैं AICT के ऑफिशियल्स होते हैं, 15 मेंबर जो होते हैं वो 15 मेंबर जो होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं. 31 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं एंड 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि पार्लियामेंट से होते हैं. मेंबर्स थे, उसका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, these are appointed by central government. Okay, so AICT का whatever chairman, member secretary and vice chairman of AICT that are appointed by central government only. Now this was the regarding all the act and its objective. जितने भी एक्ट देखे आपने, ये पार्ट बचा था, तो इसके ऑब्जेक्टिव देखे आपने, एक्ट एंड ऑब्जेक्टिव. ये पहला स्लाइड था, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड. अभी नाउ सो again there are few important points, so we'll discuss it one by one. Okay, so in India legislation on drug, in India legislation on drug, जो भी कंट्रोल का ड्रग का था इंडिया. Okay, in India legislation on drug was there to counter the malpractices of drug dispensing and medication. जब इंडिपेंडेंस हो गया ब्रिटिश से, जब हमारा इंडिया आजाद हो गया, उस टाइम पे क्या था कि जब ब्रिटिश थे तो सब ब्रिटिश रूल था, और इंडिया जब इंडिपेंडेंस हो गया, तो उस टाइम पे अपना कुछ नहीं था, सिर्फ इंडिपेंडेंस बोलने के लिए था, अपने पास कुछ भी नहीं था. तो जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया, तो माल प्रैक्टिसेस चालू हो गए, माल प्रैक्टिसेस ऑफ ड्रग डिस्पेंसिंग एंड मेडिकेशन.
मतलब कोई भी आके मन से ही कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं चले। तो इंडिया ने फिर क्या किया, नहीं अपने को भी अपना एक लेजिस्लेशन चाहिए, एक लॉ चाहिए रिगार्डिंग द ड्रग्स, ठीक है, रिगार्डिंग द ड्रग्स एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो उस टाइम पे लेजिस्लेशन आया ऑन 11th ऑफ अगस्त इन 1930। कमेटी का गठन किया, देयर वाज वन कमेटी known as a drug inquiry committee, ठीक है, drug inquiry committee was formed in the 11th August 1930. But why it was formed? Because at that time there was a lot of reports regarding the adverse reaction of drug. उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आए, बहुत सारे कंप्लेंट्स आए गवर्नमेंट को कि एडवर्स रिएक्शन जो हो रहे ड्रग्स के। तो टू इंक्वायर दैट टू इंक्वायर द मैटर ऑन एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टेड और कंप्लेंट on the 11th August 1930, Drug Inquiry Committee (DEC) was formed. It was formed under the chairmanship of R.N. Chopra, and it is also known as the Chopra Committee. Okay, so sometimes they might ask you question on this, like Drug Inquiry Committee is also known as, so it is known as a Chopra Committee. ठीक है, ये सबसे पहली कमेटी थी टू इंक्वायर द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। उसके बाद उसके बाद में क्या होगा, लेजिस्लेशन होने के बाद आपका पीसीआई का गठन हो गया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज फॉर्मड आफ्टर दिस। ओके, मीनवाइल जितना भी बीच में का जो जो कचरा है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। नाउ डॉक्टर सी के के राजा, डॉक्टर सी के राजा वाज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कौन है, डॉक्टर सी के राजा। Okay, so Pharmacy Council of India was constituted on the 9th of March 1949. First PCI was constituted to fulfill the objective of Pharmacy Act. What is the objective of Pharmacy Act? It is nothing but to regulate the pharmacy profession in India. So fulfill the objective, the PCI was constituted. Pharmacy Council of India was constituted on the 9th March 1949. Okay, उसका जो फंक्शंस है, उसका जो मेंबर्स है वो अपने देखा है। फंक्शंस आज आप देखेंगे बाद में, लेकिन मेंबर्स कितने हैं, 6 सिलेक्टेड मेंबर्स है, वो सब अपने देखा है ऑलरेडी। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पीसीआई? सो टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बाय फॉर्मिंग ए एजुकेशन रेगुलेशन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। एंड for that to prescribe the minimum qualification to be registered pharmacist by forming education regulation. For that education regulation was formed. Okay, education regulation 1991, उसके बाद में उसका बहुत सारा 2-3 बार आ रहा है, लेकिन एजुकेशन रेगुलेशन 1991 इज द मेन। उसमें सब कुछ है एजुकेशन रेगुलेशन में। फिर उसका उसमें मेंबर्स होंगे, वो मेंबर्स सब क्या करेंगे कि जो भी है मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो डिसाइड करेगी क्या होना चाहिए। उसके बाद में कोर्स कौन सा होना चाहिए, डिप्लोमा फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी। उसके बाद में किसी को अप्रूव देना है, किसी को नहीं देना है, वो पीसीए का काम है। देन अगेन टू इंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड इन द कंट्री, अगेन दिस इज द फंक्शन ऑफ पीसीआई। अगेन नेक्स्ट इज अप्रूवल ऑफ फार्मेसी कोर्सेज फॉर इंस्टीट्यूशन एंड विड्रॉल ऑफ अप्रूवल ऑफ फार्मेसी कोर्सेज फॉर इंस्टीट्यूशन। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मैं एक कॉलेज खोलना चाहता हूँ बच्चों के लिए, पॉकेट में तो कोई करता नहीं लेकिन करना चाहता हूँ, तो उसका अप्रूवल लेना जरूरी है। उसके लिए किसका अप्रूवल, पीसीए का। अगर आपको फार्मेसी का कोई भी कोर्स करना है तो पीसीए का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वो आप पीसीए के इंस्पेक्शन के लिए वहाँ से लोग आएंगे, इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्शन करेंगे, उसका रिपोर्ट देंगे पीसीए को। फिर बाद में अगर सब कुछ सही है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो इतना सारा प्रोसेस तो यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, बस इतना ही लिखा है, अप्रूवल टू फार्मेसी कोर्सेज फॉर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एंड विड्रॉल ऑफ अप्रूवल, ठीक है। वो पीसीए का इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम होता रहता है आपकी कॉलेज के ऊपर या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर। टाइम टू टाइम पीसीआई इंस्पेक्टर दे विल इंस्पेक्ट द premises approved for course. If anything suspicious found, in case of standards are not maintained in the college, then the PCI inspector can recommend to PCI to withdraw the approval, and the withdrawal of approval is a function of PCI again. Next one is the recognition of foreign qualification. मीन्स अगर बाहर कोई कंट्री से जैसे यूके से या फिर कोई बाहर से आया है जिसका फार्मेसी हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसको अभी इंडिया में प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए क्या
तो वैसे मुंह उठा के आके प्रैक्टिस नहीं कर सकता वो। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको इंडिया में पहले आना पड़ेगा, पीसीआई से रिकॉग्निशन करना पड़ेगा कि मेरे पास एक फॉरेन क्वालिफिकेशन है फार्म डी, so I want to practice the pharmacy in India. So then PCI will review all the documents, and if needed he will PCI will take exam, and if the candidate is passed, then PCI will recognize his foreign qualification as a equivalent to Indian qualification, और उसको प्रैक्टिस करने की परमिशन मिल जाएगी। जैसे होता है ना कि रशिया से एमबीबीएस करते हैं लोग, ठीक है ना, जिनको 12th में या फिर नीट में मार्क्स नहीं मिलते, मतलब जिनके पास क्वालिटी होती नहीं है या फिर उनकी औकात ही नहीं है एमबीबीएस को जाने की, वो भी क्या करते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, उनके पापा बहुत बड़े धनी होते हैं, तो वो 20 लाख 20 lakhs 30 lakhs 40 lakhs 50 lakhs ऐसा पे करके रशिया से एमबीबीएस करके आते हैं, भले ही उनको कुछ आता भी नहीं, लेकिन वो आते। उसके बाद में यहाँ पे उनको एक एग्जाम देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन। जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में होता है, वैसे ही आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में होता है। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी ऐसा नहीं चलेगी कि बाहर से कोई सीख के आया तो आके ही प्रैक्टिस करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्या सीखा है वो दिखाओ हमको, ठीक है। सो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन। देन नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट। अभी ये जो सेंट्रल रजिस्टर होता है, so maintenance of central register is the function of pharmacy council of India. Okay, so central register क्या होता है? Suppose that you have passed your bachelor of pharmacy and you want to register yourself as a registered pharmacist. Okay, so for that purpose you have to apply in the state pharmacy council. जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। Then you have to submit all the documents required, and after scrutinizing the documents and verifying the documents, they will enter your name into registered pharmacist. They will issue you certificate of registration. Okay, after that after that every year the state pharmacy council has to submit their data of registered pharmacists to the central council. Central council means pharmacy council of India and central council, and after submitting that data, the data will be entered into central register for pharmacist. आपको रजिस्ट्रेशन स्टेट में करवाना होगा, आपका जहाँ पे हुआ वो स्टेट वाले फार्मेसी काउंसिल जो है स्टेट काउंसिल, वो बाद में डाटा देंगे पीसीआई को, और पीसीआई मेंटेन करता है सेंट्रल रजिस्टर। नाउ टर्म्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ पीसीआई इज 5 years, कि जितने भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स है वो कितने दिन तक वैलिड रहेंगे? 5 साल तक, ठीक है। उनका टर्म कितना है? 5 साल। इफ एनी मेंबर्स रिमेन absent in the 3 consecutive meetings without any intimation or valid reason, same will be disqualified as a member of council. अगर कोई भी मेंबर एक साथ मतलब 3 मीटिंग को absent रहता है विदाउट प्रायर इंटीमेशन, कोई इंटीमेशन नहीं दिया उसने, या फिर उसके पास कोई रीजन भी नहीं है, ऐसे ही टाइम पास के लिए एब्सेंट होगा, sorry, so that member will be disqualified as a member of council. Okay, so remember the term of members of pharmacy council of India is 5 years. 5 साल तक वो मेंबर रहेगा, उसके बाद में री इलेक्शन होगा या फिर री नॉमिनेशन होगा, ठीक है। अगर बीच में ही मतलब आप मेंबर बन गए, 1 साल में आपका कोई दिक्कत आ गया, तो आपने मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया कि आपने छोड़ना है, तो आपने अगर छोड़ा तो उसके बाद में अगर वो इलेक्टेड मेंबर है, अगर आप इलेक्टेड मेंबर हो तो उसके बाद में फिर से इलेक्शन होगा एक मेंबर के लिए, और जितना टाइम बचा है उस टाइम के लिए वो नया मेंबर होगा। या फिर आप नॉमिनेटेड हो तो आपका ये नॉमिनेटेड फ्रेश नॉमिनेशन नया नॉमिनेटेड मेंबर लगेगा वहाँ पे जितना टाइम बचा है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, minimum qualification to be required to be a registered pharmacist is given under section 10 of the Pharmacy Act. Minimum qualification required to be a registered pharmacist is given in the section 10 of Pharmacy Act. Okay, so what is it? Degree or diploma in the pharmacy and not less than 18 years of age. इसके बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है। सो 18 years of age, 18 साल तक आप, अगर 18 साल एज है आपका तभी आप फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 18 साल आपका उम्र है, उसके बाद आपके पास कोई डिग्री है या फिर डिप्लोमा है फार्मेसी का
which is passed degree or diploma from recognized institution, ठीक है, और पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं कि डिग्री और डिप्लोमा है लेकिन कोई अगर कॉलेज से किया है वहाँ पे अप्रूवल भी नहीं है तो नहीं चलेगा ना। सो डिग्री और डिप्लोमा इन द recognized institution or from approved college of PCI and not less than 18 years age। अगर आपका एज 18 ईयर से कम नहीं है तो फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हो स्टेट फार्मेसी काउंसिल को फॉर टू एंटर योर नेम इनटू रजिस्ट्रेशन register, okay, state register, then they will issue you registration number and all certificate and all that. Now education regulation 1991 ER, education regulation 1991, under the section 10 of pharmacy act, education regulation 19 education regulation is given. Now education regulation will prescribe, what will it prescribe, it will prescribe standard of education for qualification as a pharmacist, कि आपको फार्मासिस्ट कहने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सो क्वालिफिकेशन, then course, the education regulation will decide the course, diploma pharmacy, degree pharmacy, education regulation will decide the duration of course, 2 साल 4 साल, it will also decide the syllabus for the course, then mean of examination, एग्जाम कैसे लेंगे आपका वो भी डिसाइड करेगा कौन, एजुकेशन रेगुलेशन, मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग वो भी डिसाइड करेगा, नेचर और नेचर एंड नेचर एंड नेचर एंड ट्रेनिंग ऑफ प्रैक्टिक, नेचर एंड सिलेबस फॉर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का कैसा होगा आपका, प्रैक्टिकल कैसे लेंगे वो सब आपका ईआर एजुकेशन रेगुलेशन 1991 के तहत उसका वो बनता है, ठीक है। मतलब आपके कॉलेज में जो भी चल रहा है वो एजुकेशन रेगुलेशन की वजह से चल रहा है। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन को अप्रूव करने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, है ना, उसके क्लासरूम कितने होने चाहिए, कॉमन गर्ल्स के लिए कॉमन रूम अलग से होना चाहिए, बॉयज के लिए कॉमन रूम अलग से होना चाहिए, उसके बाद आपके पास कम से कम 4 या 5 लैब होने चाहिए, है ना। तो ये सब कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय इंस्टीट्यूशन इज आल्सो गिवन इन द एजुकेशन रेगुलेशन। देन इंस्टीट्यूशन सीकिंग अप्रूवल फॉर पीसीआई ऑफ फार्मेसी कोर्स, जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको अगर अप्रूवल चाहिए पीसीआई का तो उसमें क्या क्या होना चाहिए वो सब कहा दिया है एजुकेशन रेगुलेशन में। नो कंडीशन रिक्वायर्ड बाय इंस्टीट्यूशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ पे करना है, जैसे डिप्लोमा फार्मेसी है आपका, डिप्लोमा फार्मेसी 2 साल का है, 2 साल होने के बाद आपको 500 आवर्स का ट्रेनिंग करना पड़ता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन द फार्मेसी, सो दैट इज ऑल्सो गिवन इन द एजुकेशन रेगुलेशन। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग contract for pharmacist. Now state or joint state pharmacy council, so okay, so they are formed in states, state pharmacy council or joint state pharmacy council। अगर state बड़ा है तो if the state is large enough then the state will decide to form a pharmacy council its own। if there are small states then such states will come together to form a joint state pharmacy council for maintaining the up-to-date registered pharmacist within a state। किसके लिए रजिस्टर मेंटेन करना है उनको फार्मासिस्ट का स्टेट में, ठीक है। देन दे विल सी, you can see the table and constitution of state pharmacy council and your joint state pharmacy council we have already given in the we have already seen in the previous lectures, okay। Again the term of pharmacy council, state pharmacy council is also of 5 years। मेंबर्स जो होते हैं उसके 5 साल के लिए रहते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स, अगर इलेक्शन हो गया, एक इलेक्ट होके जग गया तो वो आप कितने साल के लिए रहेंगे, 5 साल के लिए, ज्यादा नहीं रह सकते। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रजिस्टर्ड फॉर फार्मासिस्ट, सो we'll see there are 3 register, first register, subsequent register and regular register। So there are 3 kind of register maintained for pharmacist। So first register, then subsequent register and then then so we'll see one by one। So first register is nothing but the first register for pharmacist, it was prepared immediately after the independence। इंडिपेंडेंस के बाद में इमीडिएटली इसका रजिस्टर प्रिपेयर किया है अंटिल द स्टेट फार्मेसी काउंसिल वाज फॉर्म्ड। मतलब स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनने से पहले
जैसे ही भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद में इमीडिएटली एक रजिस्टर बना, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का, तो वो उसको बोलते हैं फर्स्ट रजिस्टर, देन सब्सिक्वेंट रजिस्टर. So subsequent register during the implementation period of Pharmacy Act and framing the education regulation. मीन्स जब तक पीसीआई नहीं हुआ, पीसीआई का रूल्स इंप्लीमेंट नहीं हुआ, एजुकेशन रेगुलेशन नहीं बना, जब तक बन रहे थे सब्सिक्वेंट रजिस्टर, तब उसने सब्सिक्वेंट रजिस्टर बनाए. इम्प्लीमेंट जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था एजुकेशन रेगुलेशन का, पीसीआई का. नाउ दिस इज द रेगुलर रजिस्टर. थर्ड वन इज द रेगुलर रजिस्टर. So after the implementation of education regulation and PCI, so whatever register is, that is nothing but the regular register. And now whatever registered pharmacists are there, they are present in the regular register only. आप भी अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपका नाम भी इस रजिस्टर में आ जाएगा, रेगुलर रजिस्टर. Okay. Now minimum eligibility criteria for to be a registered pharmacist is nothing but the diploma in pharmacy from recognized institution and 500 hours practical training. याद रखो 500 hours practical training, ये इसके बारे में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं. ठीक है. सो नॉट ओनली फॉर जीपैट बट अदर एग्जाम्स ऑल्सो. ठीक है. अदर एग्जाम के लिए भी इन द व्यू पॉइंट ऑफ अदर एग्जाम्स ऑल्सो आई हैव टेकन ऑल द पॉइंट्स. Then there is one definition known as a displaced person under the Pharmacy Act. Displaced person किसको बोलेंगे? Displaced as a result of partition in the country from erstwhile territory of India, which is a part of Pakistan now, whose principal mean of livelihood was pharmacy profession or business before 4th of March 1948, satisfies the condition for inclusion in the first register of pharmacist. मतलब जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ कि पाकिस्तान बना, पाकिस्तान जब बना 1948 में, तब डिस्प्लेस पर्सन मतलब पहले तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो पाकिस्तान के टेरिटरी में जो लोग थे वो भी फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहे थे. ठीक है. तो जब पार्टीशन बना तब वहाँ के लोग यहाँ पे आके बसे या फिर यहाँ के लोग वहाँ पे गए, तो उनको बोलते हैं डिस्प्लेस पर्सन. डिस्प्लेस पर्सन मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन इन द कंट्री फ्रॉम द erstwhile territory of India, which is a part of Pakistan, whose principal mean of livelihood was pharmacy profession or business before the 4th of March 1948, and the person is satisfies the conditions to be included in the first register. ये सब पार्टीशन के पहले था फर्स्ट रजिस्टर सब्सिक्वेंट रजिस्टर. अभी सिर्फ कौन सा है? रेगुलर रजिस्टर है अभी. रिमूवल ऑफ नेम ऑफ फार्मासिस्ट अंडर सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट. मान लीजिए कि आपने बी फार्म किया, डिप्लोमा किया, आपने एप्लीकेशन करके ट्रेनिंग वगैरह करके सब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम भी मतलब रजिस्ट्रेशन भी कर लिया आपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में. ठीक है. उसके बाद में हाउ टू रिमूवल ऑफ फार्मासिस्ट, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ फार्मासिस्ट अंडर सेक्शन 36 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948. हाउ, कैसे होगा रिमूव? मतलब आपको आपको तो रिमूव नहीं करना है, लेकिन अगर आप कोई माल प्रैक्टिस में पकड़े गए या फिर आप कोई मिसकंडक्ट कर रहे हो, प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम में, प्रोफेशन में कोई एलिगेशन लगे आपके ऊपर, तो एट दैट टाइम पीसीआई स्टेट फार्मेसी काउंसिल विल रिमूव योर नेम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट. ओके. सो इफ नेम इज एंटर्ड बाय एरर, मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, अगर आपका नाम एरर से एंटर हुआ है किसमें? रजिस्टर में, फिर आपका नाम निकाल देंगे, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, आपने कुछ मिस रिप्रेजेंट किया है डाटा, वो अगर उनके पकड़ में आ गए तो आपको वहां से रजिस्ट्रेशन से बेदखल कर देंगे. सप्रेशन ऑफ फैक्ट, अगर आपने फैक्ट सप्रेस किए कुछ और वो बाद में उनके नोटिस में आ गए तो आपको कर देंगे बाहर. फॉल्स इंफॉर्मेशन गिवन बाय पर्सन, अपने जो भी सर्टिफिकेट्स दिए है वहाँ पे वो सब फेक है या फिर फॉल्स है तो आपको नाम निकलवा देंगे. सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स आर फॉल्स सर्टिफिकेट्स, उसी वही कंडीशन. देन पर्सन्स कन्विक्टेड एन ऑफेंस इन प्रोफेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मगर आप मान लीजिए कि आपका आपका रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट, you are registered pharmacist and you are running your own pharmacy, and in that you are punished or you commenced an offense. आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में
या फिर नार्कोटिक ड्रग्स के एक्ट में, किसी भी एक्ट में कन्विक्ट हो गए तो फिर क्या करेंगे, अगर आप डायरेक्टली कन्विक्ट हो गए फिर भी आपका नाम रजिस्ट्रेशन से निकाल देंगे, ठीक है। अगर इनडायरेक्टली कन्विक्ट हो गए, इनडायरेक्टली मतलब क्या कि आपका डायरेक्ट कोई हाथ नहीं है लेकिन किसी ने आपका नाम लिया, है ना। ये मेरा एक दुकान है आपके, मेरा भी मेडिकल शॉप है, आपका भी मेडिकल शॉप है, मेरी आपकी दुश्मनी है, तो मैंने बोल दिया सर वो वहाँ पे ना नार्कोटिक ड्रग्स कोडिंग या फिर मॉर्फिन का डीलिंग कर रहे हैं, और आप नहीं भी करते, मैंने चुपके से आपके दुकान में रख भी दिया मॉर्फिन, और अब उन्होंने आपको पकड़ा तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोहिबिटेड और बैंड एडवर्टाइजमेंट। कौन से एडवर्टाइजमेंट दे आर प्रोहिबिटेड, यू कैन नॉट एडवर्टाइज, इससे कौन सा है, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1945 1954 sorry. Prohibited or banned advertisement, so kind of advertisement which are banned, so advertisement for procurement of miscarriage or prevention of conception in the woman or correction of menstrual disorders in the woman, so you cannot advertise the procurement of miscarriage, कि आप एडवर्टाइजमेंट कर नहीं सकते कि मेरे यहाँ पे अबॉर्शन होता है, बोर्ड नहीं लगा सकते बाहर, ठीक है। सो एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट एंड मिसकैरेज, प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन, prevention of conception in women, correction of menstrual disorders in the woman, so these advertisements are prohibited. Again, maintenance and improvement of capacity of the human for sexual pleasure, so this advertisement is also prohibited, but आजकल जो होता है ना, चलता है वाइटलिटी के नाम पे कुछ भी चलता है। नेक्स्ट वन इज डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसऑर्डर और डिसीज इन शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट, कि जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है उसके अंदर, शेड्यूल के अंदर जितने भी डिसीज और डिसऑर्डर दिए उसके रिगार्डिंग डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, उसके रिगार्डिंग कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। सो दीज आर द काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स व्हिच आर प्रोहिबिटेड और दे आर बैंड अंडर द योर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। Then again, prohibition of participation of advertisement in which is directly or indirectly, which gives false impression regarding drug or any false or misleading advertisement. They are also banned under this act. Now, important definition under Drug and Cosmetic Act. So we have seen adulterated drug, spurious drug, misbranded drug. So in addition to these, what are the important definitions? So we will see that. First one is drug. What do you mean by drug? Drug is nothing but the any medicine for internal or external use in the human being or animals for diagnosis, treatment, mitigation, prevention of any disease or disorder, including insect and mosquito repellents, which is applied on body or glided on body. Okay, then substances. Okay, this is the first. Any medicine for internal or external use in humans or animals for diagnosis, treatment, mitigation, prevention of any kind of disease or disorder, including क्या? Including mosquito repellents and substance other than food which may affect the structure or function of body. Again, it is also called as a drug. It is also called as a drug and used for destruction of insect, vermin causing disease to humans or animals. Then substance used for the component of drug including empty gelatin capsule. So इसके ऊपर भी क्वेश्चन एक बार पूछा था कि empty gelatin capsule is also considered as a drug under Drug and Cosmetic Act. Empty gelatin capsule is also considered as a drug under DNC Act 1940. Then devices used for, again same, devices used for internal or external use of treatment medication are the drug under the Drug and Cosmetic Act. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर ड्रग किसको बोलेंगे, किसी को भी नहीं बोलेंगे, ड्रग किसको बोलेंगे, एनी मेडिसिन फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूज इन द ह्यूमंस और इन द एनिमल्स फॉर diagnosis, treatment, prevention, mitigation of disease or disorder, including mosquito repellents or substance other than food, which may affect the structure and function of body, is also used for the destruction of insect and vermin, is antibiotics in the humans and animals. Substance used as a component of drug, ड्रग के साथ में जो एडिटिव्स होते हैं उसको भी ड्रग ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल जो है उसको भी ड्रग कंसिडर करेंगे अंडर डीएनसी एक्ट and devices used for the same, it is drug. Now next definition is a cosmetic. What do you mean by cosmetic?
So any article intended to be sprayed, rubbed, poured, sprinkled, or introduced into or applied to human body or its any part, cleansing, beautifying, promoting attractiveness, or altering the appearance, including additives of cosmetics. Okay, any article that is sprayed, that is rubbed, that is poured or sprinkled on skin or any part of body for cleansing, beautifying, promoting attractiveness, or altering the appearance, including its additives. So it is known as cosmetic under DNC Act. Next one is Ayurvedic and Siddha. Ayurvedic Siddha Union drug. What are these? So medicines used for internal, external use for in the humans or animals for diagnosis, treatment, mitigation, prevention of disease or disorder, which are manufactured in accordance with the formulae given in the books of traditional system of medicine, which are described in the first schedule of DNC Act. जो फर्स्ट शेड्यूल है डीएनसी एक्ट का जिसमें रेफरेंस बुक दिए है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई फार्मूला है उसके अकॉर्डिंगली कोई फॉर्मुलेशन बनाता है तो बोलेंगे आयुर्वेदिक सिद्धांत न्यूट्रिएंट ड्रग्स ओनली गुड़ाखू गुड़ाखू इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था आई थिंक गुड़ाखू is also considered as a cosmetic under DNC Act. So what is it? So it is a tobacco product used for action रबिंग अगेंस्ट द ह्यूमन टीथ मतलब दांत साफ करने के लिए गुड़ाखू यूज करते हैं जिसमें टोबैको पाउडर हो सकता है लाइम हो सकता है मोलेसिस हो सकता है ओके सो दिस गुड़ाखू कंसिस्ट ऑफ टोबैको पाउडर लाइम मोलेसिस विथ रेड मिनरल मैटर नाउ इट इज कॉस्मेटिक अंडर द प्रोविजंस ऑफ दैट मतलब गुड़ाखू जो है वो कॉस्मेटिक है ये ड्रग नहीं है ये याद रखो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन किसको बोलेंगे तो पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन there are two terms first for traditional medicine अगर ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिलेशन में है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन तो वो क्या है formulation containing only such ingredient mentioned in the formula described in the authoritative books traditional medicine in the first schedule of DNC Act excluding or not including the medicines given by parental route मतलब क्या कि पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन इन रिलेशन टू ट्रेडिशनल ड्रग किसको बोलेंगे any formulation which is formulated in accordance with the reference books given in the first schedule of DNC Act. जो भी आयुर्वेदिक का बुक है सिद्धा का बुक है या फिर होम्योपैथी का बुक है ना यूनानी ड्रग का बुक है होम्योपैथी नहीं अपना यूनानी आयुर्वेदा सिद्धा ये तीनों का कौन से भी बुक में से जो रेफरेंस बुक दिए है कहाँ पे शेड्यूल फर्स्ट ऑफ डीएनसी एक्ट उसमें का अगर कोई फॉर्मूला है तो क्या बोलेंगे पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन बट वो जो फॉर्मूला वो जो फॉर्मुलेशन है वो पेरेंटल यूज के लिए नहीं होना चाहिए दूसरा क्या है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन इन रिलेशन टू मॉडर्न मेडिसिन इन रिलेशन टू मॉडर्न मेडिसिन द फॉर्मुलेशन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज द ह्यूमंस और एनिमल्स which are not included in the IP और अदर फार्माकोपिया फॉर अ टाइम बीइंग मींस कोई ऐसा फॉर्मुलेशन बनाया आपने नया नया बनाया फॉर्मुलेशन नया ड्रग का फॉर्मुलेशन लॉन्च किया फिर नया ड्रग का फॉर्मुलेशन लॉन्च किया आपने जो किसी भी ऑफिशियल बुक में नहीं है आईपी में नहीं है यूएसपी में नहीं है बीपी में नहीं है ईपी में नहीं है उसको आपको पेटेंट लेना पड़ेगा तो दैट आल्सो कैन बी कॉल्ड एज अ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन उसके ऊपर वो फार्मूला सिर्फ आपको मालूम है वो फार्मूला किसी को मालूम नहीं जैसे देखो आप वहाँ पे आईपी में दिया है पैरास्टामोल टैबलेट 500 आईपी इसके लिए पूरा फार्मूला दिया है उन्होंने कि पैरास्टामोल का क्वांटिटी कितना है टाल का क्वांटिटी कितना है का मतलब कलर एंड ये सब एडिटिव्स वो फार्मूला दिया वाला रहता है लेकिन आपने कुछ पैरास्टामोल में मॉडिफिकेशन करके नया मॉलिक्यूल बनाया उसका फार्मूला क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करके सब उसका पेटेंट लिया आपने वो फार्मूला आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते किसी के साथ आपने वो पूरा फार्मूला लिख दिया स्ट्रिप के ऊपर तो कोई भी आके आप प्रोडक्ट बनाएगा with relation with modern medicine, the formulation for internal external use in human animals which are not included in the any official books for time being that is known as a patent and proprietary medicine. दोनों definition हो गए. Drug inspector is a public servant under the section 21 of IPC. Drug inspector जो होता है वो public servant होता है. इसके अंदर section 21 of Indian Penal Code. Next one is a license. License अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का प्रीमाइसेस नहीं है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटी नहीं है आपके पास कंपनी नहीं है आपको प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर करना है तो इन दैट केस यू कैन अप्लाई फॉर लोन लाइसेंस फॉर ड्रग अदर देन शेड्यूल C1 and X कैन बी गिवन टू ए क्वालिफाइड पर्सन who makes use of approved facility for manufacturing other person obtain a loan license for manufacturing other than schedule C1 and X
तो आपके पास नहीं, आपके दोस्त के पास क्या है, तो खुद का कंपनी है और आपके पास नहीं है, वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, लेकिन आप क्या, आप तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको भी स्टार्ट करना है बिजनेस, यार मेरे नाम से भी कंपनी होनी चाहिए। क्या करेंगे आप, दोस्त को बोलेंगे नहीं यार एक काम करना है, मुझे ना तेरे यहाँ पे तेरा जो है कंपनी, तेरा जो है उसमें मेरे को भी एक टैबलेट प्रोडक्शन करने का मौका दे। अगर उसमें उन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई तो क्या करेंगे आप लोन लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे। लोन लाइसेंस किसके लिए मिलता है, लोन लाइसेंस फॉर अदर देन शेड्यूल सी सी वन एनेक्स, तीनों छोड़ के बाकी सब ड्रग को लिए लोन लाइसेंस मिलेगा। यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट, ओके। लेकिन जहाँ पे भी आप मैन्युफैक्चर करने जा रहे हो वहाँ पे एटलीस्ट क्या है, जीएमपी फॉलो है, शेड्यूलियम, तो देयर शुड बी जीएमपी compliance. The at that facility should be GMP compliance, should be accordance with the शेड्यूलियम as per DNC Act. And the manufacturing okay, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड जो है 5 साल के लिए उसमें होना चाहिए। सो वट एवर, okay, so GMP should be fulfilled and manufacturing record should be maintained for 5 years for the expiry date of expiry. Applications for loan license is made in the form number 24A. License will be granted in the 25A. Repacking license, इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। Repacking license is issued only for drugs other than schedule CC and X if conditions are fulfilled. Repacking license मतलब क्या होता है, आपके दोस्त के पास कंपनी है, उसने ड्रम के ड्रम पूरा ड्रम भर के टैबलेट बनाया है, लेकिन बेचना आपको है, आप क्या करेंगे, आपके खुद के नाम से कंपनी स्टार्ट करेंगे और उसका सिर्फ क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे। दैट केस repacking license is issued. Repacking license is not issued for all kind of drug. Repacking license is not issued for C1 and X. It is issued only for drugs other than C1X. C1 क्या होता है आपको मालूम है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वो स्टेरिलाइज होता है तो उसको रीपैकिंग वैसे भी कर नहीं सकते आप, इसलिए यू कैन रिमूव। क्वेश्चन ऐसा था एक बार, repacking license is not issued for, which ऑप्शन थे, शेड्यूल एच ड्रग, शेड्यूल जी ड्रग, शेड्यूल सी CC1 ड्रग, लास्ट ऑप्शन था शेड्यूल CC1 एंड एक्स, लास्ट ऑप्शन करेक्ट था उसमें। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो repacking license applications are made in the 24B, form number 24B, granted license is in the 25B। तो repacking license जो होता है, तो वहां से आपने repacking करके प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसके ऊपर ये ऐसा लिखना जरूरी है। सो RPG नंबर, जो RPG नंबर मतलब रीपैकिंग लाइसेंस नंबर, उसके आगे जो भी लाइसेंस नंबर आपको, अगर आपका रीपैकिंग लाइसेंस नहीं, नॉर्मल लाइसेंस है मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे रहेगा MFG लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर। रीपैकिंग का इसलिए RPG लाइसेंस नंबर। एवरी लाइसेंस इज वैलिड फॉर 31st ऑफ डिसम्बर एवरी ईयर। कौन सा भी लाइसेंस रहने दो, दैट इज वैलिड फॉर ओनली 1 ईयर अप टू 31st ऑफ डिसम्बर। इसके ऊपर भी आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्या है, Ayurvedic formulation Aswa and Arista self-generated alcohol should not exceed 12%. अभी Aswa and Arista ये जो ट्रेडिशनल formulations है, तो these are nothing but these are the formulation made by fermentation. ओके, जो फर्मेंटेशन होता है उसमें जायजरी यूज करते हैं, उसमें शुगर यूज करते हैं, कैंडीज यूज करते हैं। सो उसमें जो सेल्फ जनरेटर अल्कोहल होता है आफ्टर फर्मेंटेशन, का लिमिट कितना होना चाहिए। सो इन द आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ऑफ आसवा एंड अरिस्टा सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल शुड नॉट एक्सीड 12% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये देखो इसके ऊपर कभी आया नहीं क्वेश्चन, लेकिन भी आ सकता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट। दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे लेक्चर। डेफिनेशंस अंडर एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट के अंडर कौन सा डेफिनेशन है। अपन ने पहले देखा है कि इलिसिट ट्रैफिक क्या होता है, छोड़ के वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी लाइक कैनाबिस और इट इज नोन एज इंडियन हेम्प। It is nothing but the leaves and flowering tops of cannabis sativa family Cannabiaceae. Cannabis product, what do you mean by cannabis product? So it includes two. First one is charas and second one is a ganja. आप बोलेंगे सर क्या पढ़ रहे हैं हम, आपको खाना नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है। तो charas is nothing but the crude purified resin obtained from cannabis plant and its concentrated preparation known as a liquid hashish or hashish oil. Ganja is nothing but the flowering and fruiting tops of cannabis plant, excluding seeds and leaves. तो बोलेंगे cannabis product. Next one is a manufactured drug. So what do you mean by manufactured drug under NDPS Act? Derivatives of medicinal cannabis, PM derivative, poppy straw concentrate, or another narcotic drug given in the official gazette of central government under this NDPS Act. One is opium. ओपियम किसको बोलेंगे, तो आपको मालूम है ओपियम क्या है, लेकिन वो ओपियम अलग है, ये ओपियम अलग है। ये ओपियम का डेफिनेशन एनडीपीएस के अंडर अलग है, ठीक है। सो ओपियम मीन्स again it consists of two part, so two, first one is a medicinal opium and second one is a prepared opium. So first one is known as a medicinal opium.
So opium powder granules related in any form. It may be either powder granules or other form of for medicinal use according to IP. IP के तहत इंडियन फार्माकोपिया के तहत जो भी ओपीएम है, जैसे ओपीएम पाउडर हो गया, ओपीएम ग्रेन्यूल्स हो गया, ये सब तो बोलेंगे मेडिसिनल ओपीएम. नेक्स्ट वन इज प्रिपेयर्ड ओपीएम. सो एनी फॉर्म ऑफ ओपीएम suitable for smoking, है ना, form of opium suitable for smoking, alkaloids and their salts, containing alkaloids and their salts. This is also considered as a prepared opium. Diacetyl morphine or heroin, preparation with more than 2.2% morphine or heroin. So all these are known as a prepared opium. Next one is opium poppy. So opium poppy क्या होता है? Plant and species of Papaver somniferum or any other species from which phenanthrene kind of alkaloids can be extracted. So they are considered as a opium poppy under the act. Now poppy straw. So all part of opium poppy in original or in crushed or powder form after harvesting except seed. जैसे ओपीएम का हार्वेस्टिंग हो गया, ओपीएम का क्रॉप लिया आपने, हार्वेस्टिंग हो गया, तो ऑल पार्ट्स ऑफ दैट ओपीएम whether in original form or crushed form or powder form, they will be called as opium straw. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये कंफ्यूज भी कर सकता है आपको, ठीक है, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. सो दिस विल एंड योर jurisprudence. So I think I have completed 5 lectures on jurisprudence and that is very much enough, 5 or 6. ठीक है, so ये हो गया आपका jurisprudence. If anybody has